What is standard cost? The answer is simple. A predetermined cost. Predetermined. Cost of an organization which supposed to be or should be the actual cost. In simple words, we can say that the cost which is determined for a product or service, mainly product, with the assumption or intention that it would be the or it should be the actual cost is called standard cost. There are three elements of cost, as we know. Element number one is material cost. Number two, labor cost. And number three, factory overhead cost. Factory overhead, FOH, nowadays MOH. It is called. Mostly the modern writers of 21st century, they have changed the name from FOH to MOH. I remember that when I studied my first course of cost accounting in 1992, I was in my BCom Part 2 studying in Government College of Commerce, Faisalabad. The cost accounting we studied in that book, it was FOH. But nowadays, the modern writers, and when I started my teaching, actually, I started after completing my MCom. "31 years ago. After completing my MCom, I went to my native behavior, fixed cost, variable cost, and mixed cost. दोनों को इकट्ठा करेंगे, गोलगप्पे दूंगा आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के. In the examination, a full-fledged scenario is asked with 3 to 4 questions about the standard costing. Behavior, fixed and variable and mixed.
mixed, semi-variable, or semi-fixed. A simple and small story I will tell you, and after that we will be on track. That story you assume as a case study. A company has received an order to produce and deliver 100 The general manager invited the functional managers in a meeting to discuss that special order. In that meeting, the general manager revealed that we have received an order of 100 shirts and we have to deliver it in a month. Beside our regular production, we have to accomplish that special order. He first asked the question from the production manager that how much quantity of material is required. Paper, pen, and calculator should be with you. Step by step, with that story, I will tell you the numbers which you have to write, and then I'll give you the answer. The game will be over. Production manager replied, 2 meter cloth per shirt. Please write it. Production 100 shirts. Material 2 meter cloth per shirt. In the meeting, he asked the person, the purchase manager, that at what price you will arrange the cloth. The purchase manager replied, 10 rupees per meter. Ten per meter. The general manager then
replied that, okay, so material cost to make one shirt will be 2 into 10 is equal to 20 per shirt. The accounts manager told yes. And 20 into 100, 2000 rupees will be needed for material to complete this order. Till here, is it clear to you? Yes, sir. First part of the story. In this story, 2 meter for one shirt. This is material quantity standard. Write it. Material quantity standard. Production manager told that. Purchase manager told 10 rupees per meter. Material price standard. Material price standard. Accounts manager told 20, 2 into 10, 20, 20 into 100, 2000. Material cost standard. Are you with me? Yes, sir. Yes, sir. इम्तिहान में आपको मटेरियल क्वांटिटी भी मिलेगी, मटेरियल कॉस्ट का स्टैंडर्ड भी मिलेगा, कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है वो भी मिलेगा, कैलकुलेशन आपको करनी है. We'll proceed with that story. Again, he asked the question from the production manager that how much time will be needed to complete one shirt. Production manager replied, 3 hours will be needed. 3 hours will be needed to make or manufacture one shirt. The general manager then addressed to the HR manager and asked,
at what rate you can arrange the labor workforce? HR manager replied that I can arrange the labor at 5 per hour. Rupees 5 or whatever is the currency. Exam will be in rupees. Then the accounts manager immediately calculated and told, so 3 into 5, 15 will be the labor cost to make one shirt into 100. 1,500. Now, here, three hours labor hour standard, 5 per hour labor rate standard, and 15 and 1,500 labor cost standard. Is it clear to you? क्लियर नहीं रिपीट करना चाहिए Now, 3 per hour labor rate standard. Sorry. 3 hours labor hour standard, 5 per hour labor rate standard, 15 labor cost standard for one shirt, and 1,500 labor cost standard. Is it clear to you? Hello? या क्लियर सर क्लियर भाईजान जवाब दिया करें यार। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अटेंडेंस शो करके और सो जाते हैं। नहीं सर, हैं क्लास में ही है, सब सुन रहे भाईजान सर, और से सुन रहे सर। देख लो यार, सर साथ में सारे यस सर, गौर से नहीं, सुन रहे सर। हमारी हमारी शक्ल आप देखते हो और अपने चेहरे मख्फी रखते हो, तो अब मैं क्या तसव्वुर करूंगा। ओके, सो मटेरियल कॉस्ट हो गया, लेबर कॉस्ट हो गई, ओवरहेड। The general manager asked them the question to the production manager, give me an approximate estimation about the overheads in the factory. The production manager replied that as an average, 2.5 per labor hour
is required for overhead. So for overhead, 3 into 2.5. Overhead is correlated with labor hours, kindly keep in your mind. Because for overhead, exact estimation is not possible. एक टेलर वो बता सकता है कि एक शर्ट बनाने में कितना कपड़ा लगेगा, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि हाउ मच थ्रेड विल बी नीडेड टू मेक वन शर्ट. बोला एक नलकी ले आना. Overhead. So it is correlated with labor hours. So FOH hours standard will be 3. FOH rate will be 2.5. FOH cost will be 7.5 into 100, 750. Is it clear to you? Yes, sir. Now, after writing all this on a paper, the general manager asked the finance manager or accounts manager, how much will be the total cost to complete this order? The accounts manager told 4,250. How? 2,000 for material, 1,500 for labor, and 750 for overhead. Is it clear to you? Yes. This total story which we put on the paper and we calculated the cost 4,250. This paper in managerial accounting or in cost accounting or in cost and management accounting is called standard cost card. Now, I'll write it here. This whole if you see the story which I have showed to you in my example, 2 meter to make one shirt, 10 per meter, 20. When the actual result came,
it depicts that 2.1 meter cloth was used to make one shirt, and the purchase manager was unable to bring a ton per meter. He arranged at 11 per meter. When the question is asked from production manager, he told that there is some spoilage or substandard material. Due to that, more material was used, and the purchase manager told that due to the shortage of that material, I was unable to get the price which I have mentioned in the meeting, so higher price. If you see here, we have two figures. Material standard quantity and material actual quantity. Material standard price and material actual price. आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तो चार चीजें लेनी है आपने. You have to take 4. Material quantity, material price. 2 values for standard, 2 values for actual. Standard quantity, standard price, actual quantity, actual price. अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का खेल खेलना कैसे है? Three combinations of 2 English alphabets आपको अपने जहन में रखने हैं. 3 combinations of 2 alphabets. I remember that 1994 में I was doing my MCom in Delhi College of Commerce. हमारे टीचर पता नहीं अब होंगे कि नहीं होंगे, जहीर अहमद भट्ट साहब, उन्होंने ये टोटका दिया था जो मैं आपके सामने आज पेश करूंगा. उन्होंने कहा बेटे 2 alphabets, 3 combinations. पहला कॉम्बिनेशन ए, दूसरा AS, तीसरा SS. AA actual multiply by actual. AS actual multiply by standard.
एस एस स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड। तीन कॉम्बिनेशन, एक्चुअल इनटू। अब क्या है, एक दो दो वर्ड्स हैं, दो दो। अब आगे की कहानी मैं आपको देता हूं। दो वर्ड है, एक उल्टे हाथ पे, एक सीधे हाथ पे। ए ए ए एस एस एस। जो उल्टे हाथ पे आएगा आपके, यानी जो पहले लिखेंगे आप, पहले जो अल्फाबेट पहले लिखेंगे, that will be associated with the element of cost, जिसका आप जिसकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रहे हैं। और जो सीधे हाथ पे लिखेंगे उसका ताल्लुक पैसे पे होगा, यानी जो सेकंड होगा। मटेरियल कॉस्ट में, और ये पूरा चलेगा, लेबर में भी आ जाएगा, ओवरहेड में भी आ जाएगा, विद स्लाइट वेरिएशन इन फर्दर डिस्कशन। ए ए एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, पहला। सेकंड कॉम्बिनेशन ए एस एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस। एंड एस एस स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड प्राइस। आर यू विद मी? यस सर। अब आपने कैलकुलेशन कर लेनी है आपके सामने। अगर आप एक्सट्रीम, यहां जहां मेरा कर्सर है, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस। कैलकुलेशन की हमने, 2.1 into 11, 2.1 into 10, and 2 into 10. Actual quantity, actual price. Actual quantity, standard price. Standard quantity, standard price. ये आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, 2 मीटर, 10 रुपए पर मीटर। ये एस एस 2.1 into 11। देखिए, ये मैंने हाईलाइट किया। कैलकुलेशन समझ आई आपको लिस्ट्रॉल में? यस सर। यस सर। ओके, आगे चलते हैं। हमारे दो स्टैंडर्ड हैं, दो स्टैंडर्ड, एक मटेरियल का क्वांटिटी का और एक प्राइस का।
दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो वो कॉस्ट है। तीन चीजें आ गई। वेरिएंस क्या है? द वर्ड वेरिएंस केम फ्रॉम वेरिएशन। आप जो प्री डिटर्मिन करके जिस चीज का तयन करके बैठे हैं, ए प्री डिटर्मिन्ड कॉस्ट विच शुड बी द एक्चुअल कॉस्ट, अगर उससे वेरी कर जाएं चीजें तो वेरिएंस आ जाएगा। फॉर दैट आपको एक बहुत ही सिंपल पॉइंट दूंगा। एक्चुअल कॉस्ट हमारी कितनी? 23.10। एम आई राइट? क्लियर है? यस सर। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी? 20। इसका मतलब ये है कि हमारी 3.10 एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड से ज्यादा है। इट मींस ये तो अनफेवरेबल सिनेरियो है। हमने सोचा था 20 रुपए का कपड़ा लगेगा एक शर्ट बनाने में, लगा कितने का? 23 रुपए 10 पैसे का। 3 रुपए 10 पैसे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अनफेवरेबल है। एक पॉइंट आपको दे रहा हूं। इफ in we are calculating the cost standards and actual is more, the variance will be unfavorable, आंखें बंद करके। क्योंकि कॉस्ट के लिए एक्चुअल स्टैंडर्ड से कम होगी तो हम एफिशिएंट हैं, अगर एक्चुअल स्टैंडर्ड से ज्यादा है तो अनफेवरेबल। पहला वेरिएंस क्लियर हुआ? हेलो? जी सर। जी एक्चुअल सर। ग्रेटर देन स्टैंडर्ड। अब आगे चलेंगे। ये जो 3.10 का अनफेवरेबल है, बिहाइंड द सीन दो चीजों की वजह से है। वेरिएशन इन क्वांटिटी, वेरिएशन इन प्राइस। अब पहले और दूसरे कॉम्बिनेशन में आप देखिए, ये पहले और दूसरे कॉम्बिनेशन में क्या चीज आपको कॉमन लग रही है? ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। सर पहले दूसरे में एक ही क्वांटिटी। जी, क्वांटिटी। ठीक है। और दूसरे और
तीसरे में क्या चीज कॉमन लग रही है? स्टैंडर्ड प्राइस। प्राइस। अब जो चीज वेरी कर रही है पहले और दूसरे कॉम्बिनेशन में, वो क्या है? जो वेरी कर रही है, प्राइस। प्राइस। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कहलाएगा प्राइस वेरिएंस। अगर आपको याद हो, हम लोग, आई रिमेंबर दैट, मैंने तो खैर 10 स्टैंडर्ड जो की मुद्दत की बात है, वो आपको वही चीज आपको यहां अप्लाई करके देता हूं। 10वीं जमात में हम लोग पढ़ते थे मैथमेटिक्स। उसमें एक टॉपिक था साइमल्टेनियस इक्वेशंस। दो वेरिएबल के साथ होती थी, 2x + 3y इज इक्वल टू, और 3x + 4y इज इक्वल टू समथिंग। उसमें एक टॉपिक था इलिमिनेशन, अस्कात कहते थे हम उसे, कि हम एक को बराबर करके कैंसल करते थे और दूसरे की वैल्यू ले आते थे। 1989, आई रिमेंबर दैट, इस्लामिया हाई स्कूल गोजरा में पढ़ता था मैं, 10th स्टैंडर्ड। उस वक्त हम सोचते थे कि यार ये क्यों पढ़ रहे हैं चीजें, लेकिन फिर बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चला कि हाँ यार, यहाँ यहाँ इनकी एप्लीकेबिलिटी आएगी। आगे भी बहुत सी चीजों में आपको बताऊंगा, स्टैटिस्टिक्स के टूल्स आएंगे स्टडी में। जो साकिन है उसका वेरिएंस नहीं होगा। जो चीज वेरी कर रही है, साकिन मींस कांस्टेंट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, प्राइस वेरिएंस आएगा आपके सामने। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, क्वांटिटी का वेरिएंस होगा। ये कॉस्ट वेरिएंस के दो बच्चे हैं। और अभी आपको मैं एक पेपर पे लिखकर ये पिक्चर ग्रुप में भेजता हूं, और एग्जाम में आप उससे कर लेंगे। मुझे ये बताइए, इज इट क्लियर टू यू? फर्स्ट थिंग इज, AAASSS की क्या फिलॉसफी है? हाउ टू कैलकुलेट and how to calculate the variance. Is it clear to you? Okay. कम से कम 10% ऑफ द पेपर होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से। जी, ग्रुप में जरा हेलो कीजिए मुझे।
ओके, थैंक यू वेरी मच जी। इसके बाद डायग्राम बनाने लगा हूँ आपके लिए और फिर उसको शेयर करूंगा। anywhere in the examination, actual quantity into actual price, 2.1 into 11, 23.10, actual quantity into standard price, 2.1 into 10, 21, standard quantity into standard price, 2 into 10 is equal to 20. Material cost variance 23.1 minus 20, 3.1, unfavorable. 23.1 minus 21, 2.1. Material price variance 2.1, unfavorable. And (21 minus 20) material quantity variance. One, unfavorable. आपको पिक्चर भेज रहा हूं, स्टोरी क्या बनेगी, तो पिक्चर को देखिए जरा। पिक्चर मिल गई आपको? यस सर। क्लियर है जनाब? तो यस सर। आगे चलते हैं। एस और एस का ये खेल है। अब जरा आ जाइए लेबर पे। हम लेबर वेरिएंस की बात करेंगे तो दो चीजें, लेबर आवर एंड लेबर रेट। आवर
and rate. 2 hours. अच्छा, एक चीज आपको बता दूं बिफोर मूविंग टू लेबर, सवाल पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि विच वेरिएंस विल बी फेवरेबल और एंड विच वेरिएंस विल बी अनफेवरेबल। आपको अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं, कभी नेगेटिव और पॉजिटिव पे डिसीजन नहीं लेना आपने। आप जौन सी अमाउंट में से जौन सी मर्जी माइनस कर लीजिए, ये नहीं कि फला में से फला माइनस करना है, नो। आपने ये देखना है कि अगर इफ एक्चुअल इज मोर, कॉस्ट में अगर एक्चुअल ज्यादा है तो वेरिएंस अनफेवरेबल होगा, हाँ कुछ भी हो। अब पहले क्वेश्चन में देखिए 2 एंड 10, 2.1 एंड 11, दोनों चीजें एक्चुअल ज्यादा। आर यू विद मी? यस यस। यस सर। दोनों चीजें एक्चुअल ज्यादा, दोनों वेरिएंस अनफेवरेबल, तीसरा भी अनफेवरेबल। व्हेन द क्वेश्चन विल बी इन फ्रंट ऑफ यू, आपको पहले आइडिया हो जाएगा। ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, यू विल नॉट फाइंड इन एनी बुक, based on my study and my observation and experience, you will get a clear idea ahead of time कि यार मेरा ये फेवरेबल आएगा, ये अनफेवरेबल आएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, इसमें उल्टा दिया मैंने। लेबर में 2, आवर और रेट, ए ए ए एस एस एस, स्टोरी वही। अब ए जो पहले वाला है उसमें फिट करेंगे लेबर को, एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट। राइट वाले में फिट करेंगे पैसे को, पैसा मीन्स वो मॉनेटरी वैल्यू। यार फॉलो कर रहे हो ना मेरी बात को आप लोग? जी सर। एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट, 1.9 इंटू 7, 14.25। नो नो, सॉरी सॉरी सॉरी, 1.9 इंटू 7, 13.3। 1.9 इंटू 7, एक्चुअल आवर, स्टैंडर्ड रेट 1. एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट, एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड रेट 1.9 इंटू 7.5, 14.25। स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट 2 इंटू 7.5, 15। ठीक है जी, कैलकुलेशन इज क्लियर? क्लियर क्लियर। यस सर। नाउ 1 and 3, labor cost variance, 13.3 minus 15,
1.7 फेवरेबल। आप चाहे 15 में से 13.3 को माइनस कर लें या 13.3 में से 15 को माइनस करें। काइंडली कीप इन योर माइंड नेगेटिव और पॉजिटिव साइन को नहीं मेंशन करना अकॉर्डिंग टू माय फिलॉसफी। हो सकता है किताबों में आपको नेगेटिव पॉजिटिव मिले, बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप फेवरेबल एंड अनफेवरेबल की स्टोरी पे जाएं, आप मैथमेटिकल नोटेशन के ऊपर मत जाएं। Is it clear to you? Yes. Actual hours, actual rate, 13 point, actual hours, standard rate, 14.25, standard hours, standard rate, 15. 1 minus 3, क्या हो? 1.7 labor cost variance. Favorable. Why it is favorable? मुझे बताइए। Actual is less than. जी Actual यहाँ पर होता है। जी, actual is Less than. less than the standard। और सवाल पक्का आना है। अच्छा, और ये आपकी फिंगर टिप्स हो, 1 2 3, AAASSS, 1 2 3, पहला तीसरे के साथ, फिर पहला दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ। एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट, एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, दोनों का फर्क 0.95। कौन सी चीज साकिन है 1 और 2 में? विच वन इज कांस्टेंट? Hours. आवर्स। वेरी क्या कर रहा है? रेट, लेबर रेट वेरिएंस। फेवरेबल। और 2 minus 3, 0.75। क्या चीज वेरी कर रही है? आवर्स, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। फेवरेबल। दो बच्चे इसके भी हैं, पिक्चर भेज रहा हूं आपको, इसको देखिए। अभी पूरी पिक्चर आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसको देखिए, फिर आगे चलते हैं। इज इट क्लियर टू यू भाईजान? Clear, sir.
Okay. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दूं, वन इंटरेस्टिंग थिंग, लेबर आवर्स हैं, the labor hours which are used in labor, 99.99% cases the same will be used in overhead. Correlate करते हैं, we correlate the FOH with labor hours. वैसे तो 6 bases हैं, but in standard costing mainly we. So labor hours same as FOH hours are same as labor hours too. Rate is 5 here. 1.9 into 6. In this scenario, what I did, one actual is more, one standard is more. So actual hours, actual rate, actual hours, standard rate, and standard hours, standard rate. Actual FOH cost is greater than standard with 1.40. Unfavorable. The rate standard was 2, actual 1.9. Two hours, 1.9. So the efficiency is favorable. And rate 2 and 1.9, 5 and 6 here. 5 standard, 6 actual. So rate variance is unfavorable. The difference of these two, 1.9 is unfavorable, 0.5 is favorable. So overall 1.4 unfavorable. Is it clear to you? बताइए भाईजान. हेलो. Clear, sir. Clear, clear. ओके, थोड़ी ब्रेक करते हैं यहाँ पे, उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे. Please see for material variances on your screen. Actually, in the examination, only that part will be required. Which you have to calculate. Please tell me, is it clear to you? The calculations.
हेलो जी सर। भाईजान, क्लियर है? ये सर भी इसको हल कर रहा हूँ। हमारी जान मत लिया करो यार। पूछ सर रहे हैं, इसको अगर अभी क्लियर है ना, समझ आएगी, क्योंकि एग्जाम आपने देना है भाई। सर इसको भी सॉल्व करता हूँ। ये आपके सामने सॉल्व्ड है। सॉल्व्ड है भाईजान। सिर्फ आपने इसकी कैलकुलेशन देखनी है कि एग्जाम में हाउ यू हैव टू डू। ओके सर। क्योंकि जब आपके सामने पेपर आएगा, पेपर सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह तो सर वहां पे जरूर करेंगे। सिर्फ ये पेपर, पेन और कैलकुलेटर होगा, और 4 ऑप्शंस होंगे। सर ये पेपर को थोड़ा सोच के घबराहट होती है कि उसका फॉर्मेट कैसा होगा और टाइम मैनेज किस तरह करेंगे पेपर को सॉल्व करने के लिए। ये थोड़ा बता दीजिएगा सर। भाईजान, आपको पेपर करवाऊंगा ना मैं। घबराए नहीं आप। लेट्स सपोज ये क्वेश्चन है, मुझे आपने क्वेश्चन दे दिया। इस सिनेरियो के साथ पेपर कैसा होगा, पेपर भी आपको बता दूं बिफोर मूविंग फर्दर। उन्होंने कहा जी, मटेरियल की क्वांटिटी है, मटेरियल एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस एंड स्टैंडर्ड प्राइस। अब नीचे कहता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस 1100, 1300, 1200, 1000। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 1000, 1100, 1200, 1300। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। आपको ऑप्शन 1200 वाली क्लिक करनी है, और उसको क्लिक करने के लिए क्या होगा, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। वहां पे कोई टेबल नहीं बनाना, वहां पे कोई ग्राफ नहीं है, वहां कुछ नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं। यू विल हैव द आंसर। 4 में से 3 ठीक नहीं होंगे, एक ठीक होगा। ये देखें कैसे आएगा, आपको लिख के दे देता हूं। वो कहते हैं द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल cost data of a manufacturing organization is given below। भाईजान, क्लास है, 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद कॉल करता हूँ। ओके, वेलकम। is given below।
भाईजान, हेलो। यस सर बोले। इस तरह का सवाल आएगा। Now, in order to answer that, if I'm in the examination, what I will do? 1000 into 12, 12,000, 1,200 into 11, 13,200, 1,200 favorable.
and I will take that 1,200. Is it clear to you? Yes, sir. Sometimes you will face with one scenario more than one question. That is called MTQ. You may expect MTQ also. I'll show you how. Question 2. Material price variance of the company is then you have to click 1000 favorable after your calculation. Is it clear to you? Bhajan? Clear, sir. सर ये Clear. सर बता सर 1000 का पिछला बार मेरा आंसर ठीक आया था 1200. Because after your calculation, you have to give the answer. Here I have done all the calculations. You can see. So basically in the examination, 1000 into 12, 1000 into 11, 12,000 into 11. Formula sheet I will give you. You can keep with you. The second one is labor cost variance. Let's check it. See the calculations. Is it clear to you? Hello, Yes, sir. labor. Yes, sir. Clear है. Sir, in number 3 थोड़ा explain. Number 3,
वो क्या Yes, है yes. So how it is unfavorable? भाई अनफेवरेबल यू टेल मी बताइए हेलो व्हाट इज योर क्वेश्चन Because actually more. भाईजान जहां पर एक्चुअल छोटा है वहां फेवरेबल जहां एक्चुअल बड़ा है वहां अनफेवरेबल क्लियर है Yes. लेकिन भाईजान ये कॉस्ट के लिए होगा रेवेन्यू में इसका उलट हो जाएगी स्टोरी दिस इज फॉर कॉस्ट वेरिएंस क्लियर टू ऑल ऑफ यू हेलो यस सर। मूविंग फर्दर ओवरहेड पैकेट check the calculations एक्चुअल मटेरियल प्राइस 1.1 direct labor efficiency 2 direct labor to produce a unit actual labor hours worked 30,250 direct labor standard wage 4.2 actual 4.5 overhead fixed and variable standard application this is a comprehensive question
and this question covers each and every aspect of standard costing. Okay, भाईजान, क्यों सर? inshallah, in our next meeting, we'll complete that. The topic of standard costing, inshallah, we will complete in our next meeting. कौन से टॉपिक कवर किए हैं अभी तक सर पिछली क्लासेस में? आपको नोट शेयर करता हूँ. जी, आई थिंक मुझे नहीं. लेक्चर्स किसी ने शेयर किए हैं, हाँ, लेकिन आप नोट्स शेयर कर दें. मैं आपको शेयर कर देता हूँ. कवर अप हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए. ये सारा और क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस भी होंगे एग्जाम्स में, या जैसे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वैसे होंगे? एमटीक्यूज होंगे ना मैम, सारे? एमटीक्यूज होंगे. फिर तो जो बाकी के मेरा ख्याल है 3 पेपर रहते हैं, आप अगर उनका मुझे सिलेबस दे देते तो मैं उसकी आउटलाइन देख के वो भी उनमें भी अपीयर हो जाती. ठीक है, आपको भेजता हूँ. आपके कितने पेपर्स हैं टोटल? मेरे 13 एग्जाम्प्ट हैं, 5 देने हैं. अभी आपने 2 में रजिस्टर किए हैं. हाँ जी, 2 में रजिस्टर किया. ठीक है, आप ऐसा कीजिए, कल आपको मैं एक्सेस देता हूँ एएफएम की, हम्म. क्योंकि 2 जिसमें आप रजिस्टर उनकी तो एक्सेस है आपके पास. जी जी. कल की क्लास लो, क्योंकि 2 सब्जेक्ट मेरे हैं. हम्म. फिर उसके बाद एक आपको टैक्स की एक्सेस दूंगा वेंसडे की, और सैटरडे की, चल फ्राइडे की होगी ऑडिटिंग की. क्योंकि जो पाकिस्तान वाला टैक्स है वो मैंने बहुत ज़्यादा इन डिटेल में पढ़ा हुआ है, जो उसका इवन बजट आता है और वो जो एफबीआर बुक भी इशू करता है ना, वो वही हमारा ठीक है ओपन मैम, असल में लेकिन ये है ना कि एवरी टाइम ईयर में टैक्स चेंज होता है ना. हाँ जी. आपको बस टाइम को मैनेज करना है, बाकी हो जाएगा. ओके जनाब, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. Thank you, sir. थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज.